Uh, Sir has joined the meeting, so I'm starting with the session. A very good morning to Honorable Resource Person of the workshop, respected Principal Ma'am, dear colleagues and dear student teachers. As the country battles the second wave of COVID-19 pandemic on a war footing, the doctors, the frontline workers, and all the corona warriors are tirelessly functioning and are facing all the challenges posed by the situation with positivity. Amidst the ongoing pandemic, the role of NSS volunteers has become very important. Keeping the need of hour in mind, Army Institute of Education, Greater Noida, in collaboration with Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India is organizing this online workshop on guidance for psychosocial counseling and COVID helper skills. On behalf of Honorable Principal Dr. Tanya Gupta and Management of Army Institute of Education, Greater Noida, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, I, Pratibha Garg, Program Officer, NSS Cell, Army Institute of Education, Greater Noida, welcome the esteemed resource person of today's workshop, Dr. Shatrughan Bhardwaj, Regional Coordinator, Vental, MGNCRE, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. Good morning, sir. Good morning, madam. I would also like to welcome all the respected faculty members and student teachers of B.Ed and B.Ed Special Education who have joined us on this virtual platform. Dr. Shatrughan Bhardwaj is the Regional Coordinator, Vental, MGNCRE, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. Sir has done a doctorate in non-violence and peace education and LLB and MA and MPhil in political science from Central University of Haryana, India. Sir has been working as a senior faculty in MGNCRE, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. Before joining, he has served as an assistant professor in PG College, resource person in Haryana Institute of Rural Development, and visiting faculty in various universities. Sir is a recipient of many national awards and laurels. Sir has authored several books as Panchayati Raj institutions, reference to Gram Panchayat, NHRC, an institution for human rights and education, contemporary issues in Indian democracy, constitution, politics, and society. Sir, with due respect, ma'am is a little busy right now. So ma'am will be joining us shortly. Dr. Shatrughan sir? Yes ma'am. तो फिर start करें क्या? हाँ जी sir. So without taking much time, I request you to please guide us on psychosocial counseling and COVID helper skills, sir. Over to you, sir. Thank you, madam Pratibha Garg ji, Dr. Pratibha Garg ji. Thank you. So nice. I also welcome all of you on the behalf of MGNCRE, Department of Higher Education, Ministry of Education, Dr. Pratibha Garg ji, Dr. Jyoti Tiwari ji, पूजा गुप्ता मैडम जी, दीप्ति गुलेरिया मैडम जी, डॉक्टर बबीता भारद्वाज जी, आप जितने भी स्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, और मैडम जी का, तानिया जी का तो बड़ा अच्छा हमारे साथ इस प्रोग्राम से काफ़ी प्रोग्राम हम करते रहते हैं और अभी भी वो हमारे एक एफडीपी प्रोग्राम में भी जुड़े हुए थे। तो वंस अगेन आई आल्सो वेलकम कि आप इस तरह से इनोवेटिव स्टेप्स लेते रहते हैं अपनी पुपिल टीचर्स के प्रति, अपनी संस्था के प्रति। इट शोज योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एजुकेशन के प्रति। और आजकल जो सिनारियो, जो कंटेम्प्रेरी सिनारियो है, दैट इज वेरी चैलेंजिंग, और आप ऐसी परिस्थितियों में बड़े डेडिकेशन कमिटमेंट से आपकी सारी फैकल्टी और पुपिल टीचर्स कार्य कर रहे हैं। रियली इट्स ग्रेट। और अभी जैसा कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो टीम्स बनेंगी, वो टीम डेफिनेटली टू सर्व द नेशन, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द इंस्टीट्यूशन।
क्योंकि अभी जो सिनारियो है दैट इज वेरी क्रिटिकल। आप सभी, आप लोग दिल्ली में इस चीज को बहुत अच्छे जानते हैं। और इस विषय पर जो आपका जो एनएसएस का जो पूरे कंट्री में जो जो काम जो कर रहा है दैट इज वेरी ग्रेट। क्योंकि जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स की टीम बना करके समाज को अपना अपना बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि इस विपदा में, इस आपदा में हम किस प्रकार से साइको सोशल काउंसलिंग करें और उनको इस जो एक निराशावादी माहौल बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि ठीक है कि कोई आदमी बीमार हो गया, उसको डॉक्टर्स वगैरह ठीक कर देते हैं, लेकिन जो आज की जो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चीजें हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी पेनफुल कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बहुत से लोगों में निराशावादिता आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनका एज ए काउंसलर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो बहुत अच्छा वो सब कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैडम प्रतिभा गर्ग जी इस विषय को जानती हैं कि अभी जो मैडम ने रजिस्ट्रेशन किया और मैडम जी ने पहले भी इस विषय ये लिंक मैंने शेयर किया था, एक जो गूगल फॉरम है भारत सरकार का, तो उसमें क्या है जैसे वो गूगल फॉरम रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करते हैं बिल्कुल, तो हम उसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उसमें 5 टीम्स के बारे में आता है। जैसे आपकी जो डिटेल्स है वो तो ठीक है, उसके बाद उसमें 5 टीम के बारे में आता है। तो थोड़ी सी मैं उस 5 टीम्स की थोड़ी चर्चा करूंगा ताकि सभी को उसमें थोड़ा इजी हो जाए इस चीज को जानने में, समझने में। एक सेकंड। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं सबसे जो फर्स्ट टीम है वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी पुपिल टीचर्स हैं एज एनएसएस वॉलंटियर्स, इनका इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। और पूरे जैसे मैंने बताया कि हम पूरे कंट्री में जितने भी एनएसएस कोऑर्डिनेटर्स हैं, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर के एमजीएनसीआरई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द नेशन हम ये सब टीम्स बना चुके हैं। और अभी कुछ संस्थाओं में, जैसे कि हमारे यहाँ आज इस विषय बातचीत कर रहे हैं, कुछ संस्थाओं में अभी हो भी रहा है। तो ये एक सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए साइको काउंसलिंग के संदर्भ में या मेडिकल फैसिलिटीज के संदर्भ में या दूसरी अन्य बातें उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा उद्देश्य है कि ईच वन रीच वन, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें वॉलंटरिज्म है, जो वॉलंटरी राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, तो ईच वन रीच वन, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचना है जो नीडी है, चाहे वो कोविड पेशेंट है, चाहे वो पोस्ट कोविड की सिचुएशन में है या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी के बारे में। तो साथियों, जैसा कि ये गूगल फॉरम पे है, जैसे आपने क्लिक करोगे तो इसमें निकलेगा आपके सामने कि द फर्स्ट टीम विल शेयर कर दिया है चैट में ना सर, चैट बॉक्स में फॉर्म शेयर कर दिया है, देयर दे कैन सी द टीम सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसा कि मैडम ने चैट बॉक्स में वो शेयर भी कर दिया, इट्स वेरी ग्रेट कि आप सभी उसको जाकर के उसको देख सकते हैं। तो जो सबसे जो पहला है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम। जैसे एक जो टीम बनती है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो इसमें वो सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी वॉलंटियर्स या पुपिल टीचर्स इसमें इसके पार्ट होते हैं जिनका इस विषय में रुचि है, क्योंकि उसकी रुचि भी देखी जाएगी किस आदमी की क्या रुचि है। तो जो लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में रुचि रखते हैं तो वो लोग इसके मेंबर्स बनेंगे और उनका कार्य क्या है कि उनके आसपास जो जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जितनी भी फैसिलिटीज की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो उनको इकट्ठा करेंगे। जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल बेड्स, वेंटिलेटर्स, आईसीयू, तो उनका वो एक लिस्ट बनाएंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। ये हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ले सकते हैं, बहुत से एनजीओ सोशल सोसाइटी से ले सकते हैं, बहुत से लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। हम उन सब की मदद से ये सब जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जो नंबर्स हमारे पास आए हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और इस डेटा को हम कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आजकल कोविड वैक्सीन का आप सभी जानते हैं कि कितना क्राइसिस चल रहा है। तो जो कोविड वैक्सीन जो अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों को बताना, उसी की इंफॉर्मेशन रखना, कहाँ कैसे लग रही है, कितनी भीड़, उसको अपडेट रखना। और सबसे बड़ी बात है कि क्राउड मैनेजमेंट एट कोविड वैक्सीन सेंटर। आजकल क्या है कि लोग बड़े जल्दीबाजी में या बगैर सोचे समझे
वो सब भीड़ कर देते हैं। जबकि जबकि इस कोविड में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि हम सबको क्राउड से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क करना है, और वो सब चीजें हमें उससे अवॉइड करना है। तो ये जो टीम है इस फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही है अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट डाइट एससीआरपी से, तो ये उन्होंने बहुत अच्छी टीम्स बनाई है और वो बहुत अच्छे से कार्य कर भी रही है। दी सेकंड, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर। उसके बाद हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो सेकंड टीम है दैट इज नॉन हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम। देखिए बहुत से पीपल टीचर्स या वॉलंटियर्स इस प्रकार से होते हैं कि उनको नॉन हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम का स्पिरिट उनमें होता है, इस तरह का उसमें रुचि होता है। तो ये सभी लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं कि डिफरेंट प्रकार की, डिफरेंट टाइप की जो वॉलंटियर्स की आवश्यकता होता है, डिफरेंट टाइप की हेल्पर की आवश्यकता होती है। तो बहुत से एनजीओज है जो आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास, आपके एरिया में लोगों को भोजन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोविड पेशेंट है या उसके फैमिली मेंबर्स है। तो ये सब जो नॉन हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम है, ये प्रयास ये करेगी कि जो लोग इस प्रकार की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो करेगी और उनकी सूचना देगी। जैसे मान लीजिए किसी को भोजन की आवश्यकता है तो उसको उस एनजीओ के, उस संस्था के नंबर देगी, या उस संस्था को ऐसे लोगों के नंबर देगी जिनको भोजन की आवश्यकता है, ताकि वो एक्सेस कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सरकार, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, विभिन्न संस्थाओं की तरफ से बहुत से कोविड हेल्पलाइन नंबर्स है जो विभिन्न प्रकार की मदद कर रहे हैं। तो ये नंबर भी उनसे शेयर किया जाएगा ताकि उनको जिस प्रकार की नीड हो, जिस प्रकार की आवश्यकता हो, वो वहां उनसे बातचीत कर सके और इस यहाँ तक वो पहुंच सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साथियों आप देख रहे हैं जैसा कि मैडम ने बताया कि टीम नंबर 3, इसमें टीम नंबर 3 बनेगी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टीम विल टॉक अबाउट द इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई कोविड पेशेंट है या उनके फैमिली मेंबर्स है, कई बार वो उनको भावनात्मक सपोर्ट की भावनात्मक सहायता की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से वो कई बार लोग टूट जाते हैं, उनमें बड़ी निराशावादिता आ जाती है। तो इस टीम का उद्देश्य है कि उनको मानसिक रूप से सबल बनाना, उनमें होश न डालना, उनके मनोबल को बढ़ाना, और वो अपने आप में घबराए नहीं, उसकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस टीम में जो लोग अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, जिनका पब्लिक डीलिंग्स अच्छा है और जो इस विषय को अच्छे से कर सकते हैं, वो इस टीम के मेंबर्स इसमें बनेंगे, लोगों को इस तरह का मानसिक रूप से सपोर्ट करने के लिए। द नेक्स्ट इज टीम नंबर 4। फ्रेंड्स, यू कैन सी the team number 4 will talks about, will help about the medical essentials। देखिए बहुत से लोगों को मेडिकल एसेंशियल्स की भी आवश्यकता होती है, वो उनका कई बार ठीक से एक्सेस नहीं हो पाता है। ऐसे सिचुएशन में ये सभी लोग क्या करेंगे कि ये इस चीज की डेटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे डिफरेंट टाइप के एनजीओ के साथ मिलकर के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, कि कहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। अभी तो हालात देश के सुधरे हैं, बीच में बड़ा गड़बड़ था, आपको पता है। तो ये कई बार मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो ये जो टीम है ये मैनेजमेंट ठीक से करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कहाँ है, ब्लड प्लाज्मा कहाँ अवेलेबल है, ये दवाई वगैरह कहाँ अवेलेबल है, इंजेक्शन वगैरह कहाँ अवेलेबल है, और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह जो इजीली एक्सेस हो सके, इन सभी का डेटा कलेक्ट करेगी और जिन लोगों को आवश्यकता है उनको इन्फॉर्मेशन भी फॉरवर्ड कर सकती है कि ये चीज यहाँ मिलेगी। तो ये मानवता की सेवा है और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। हम इस तरह की एक्टिविटीज भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अभी हम जो बात करेंगे वो एक तरह से बिहेवियरल एस्पेक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेटिंग, अब ये सभी चीजें हमारी पास हो गई, तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो देखिए कम्युनिकेटिंग विद द कोविड पेशेंट, हम जो कोविड जो पेशेंट है उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बातचीत कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे प्यार के 2 बोल, हमारी एम्पैथी के 2 शब्द किसी को जीवन दान दे सकते हैं। जैसा कि आप इस चीज को महसूस करते हैं कि बहुत से लोग आज
आत्महत्या की बात कर रहे हैं। और अभी मैं जब हरियाणा के SCRT डाइट में हम प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ एक मैडम ने, बड़ी सीनियर प्रोफेसर मैडम ने बताया कि उनकी मदर को कोविड हुआ और बहुत अच्छे से उन्होंने देखभाल किया और वो कोविड से निकल भी आया, कोविड से वो ठीक भी हो गई। लेकिन कोविड से ठीक होने के बाद भी वो बच नहीं पाई क्योंकि वो मन से हार चुकी थी, मनोबल कमजोर पड़ चुका था, विल पावर समाप्त हो चुकी थी। तो इसलिए कम्युनिकेटिंग विद द कोविड पेशेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखोगे, इसमें आप महसूस करोगे कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, जब हम बातचीत करते हैं कोविड पेशेंट से, तो जो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है दैट मस्ट बी वेरी पॉजिटिव। और जो हमारी लिसनिंग स्किल है, हम उनकी बात, जो पेशेंट के परिवार की बात सुनेंगे तो उसमें हमारी लिसनिंग स्किल है दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव और बड़ी डायनेमिक होनी चाहिए ताकि सभी एस्पेक्ट को हम कवर कर सके। उसके बाद होती है स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप तो सभी साथी इस चीज को जानते हैं कि कोई आदमी से किसी आदमी ने हमसे बात किया तो ठीक है, बात तो हमने स्किल ऑफ लिसनिंग कर लिया, इसके साथ साथ उसको बातचीत करने का हाव भाव क्या क्या है, उसमें भय तो नहीं है, वो किस लेवल से बात कर रहा है। तो स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद द कोविड पेशेंट, कि हम उसको ऑब्जर्व भी करें कि आदमी का आवाज में किस तरह का फ्लक्चुएशन है, आवाज में किस तरह का मॉडरेशन है, कितना कॉन्फिडेंस है या कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कितना घबराहट है, उन सभी चीजों को हम इसमें देखते हैं। उसके बाद साथियों, जैसा कि आपके सामने स्किल ऑफ एम्पैथी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सिंपैथी का नाम बहुत सुना है, बहुत सुना है। आप ये एज ए लेमैन आप सभी सिंपैथी को जानते हो। तो सिंपैथी और इम्पैथी, ये दोनों वर्ड कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं बहुत सी बार, तो इसमें थोड़ा अंतर भी आज इस चीज को भी जानने का प्रयास करेंगे कि सिंपैथी क्या है और एम्पैथी क्या है। देखिए, जो एम्पैथी होती है वो मोस्टली जब हम बातचीत करते हैं तो इसके काफी जो स्टेप्स आपको देखने में मिलेंगे, क्योंकि जो एम्पैथी है, एम्पैथी जो मेनली जो डिपेंड होती है, जो एम्पैथी, वो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम आइडेंटिकल एम्पैथी की बात करते हैं, पैराफ्रेजिंग एम्पैथी की हम बात करते हैं, और उसके बाद एक्यूरेट एम्पैथी की हम बात करते हैं, कॉन्करेंट स्किल की बात हम करते हैं, और एडवांस एम्पैथी की बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन जो हम करते हैं कोविड पेशेंट से, तो इनका बड़ा महत्व है। तो इन चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस गिवन मोर सपोर्ट टू डेवलप कॉन्फिडेंस टू रिकवर हिम क्विकली, अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इन्हीं सभी एस्पेक्ट पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने या जो चर्चा की, जितनी बात की, ये आज के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे बताया अक्रॉस द कंट्री, वेलकम मैडम जी, तानिया गुप्ता जी मैडम भी हमारे बीच में आ गई है। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सर, धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, ये जो हम स्किल ऑफ एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट है इसी के बारे में, क्योंकि आप सभी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सभी आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक जो टीचर होता है वो अपने आप में बहुत अच्छा काउंसलर भी होता है। भले उन्होंने काउंसलर की डिग्री नहीं ली हो, लेकिन वो बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस पब्लिक डीलिंग में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ, तो बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। तो हम आज स्किल ऑफ एम्पैथी के बारे में थोड़ी चर्चा भी करेंगे आप सभी विद्वान साथी साथ, भाई ये क्या है और इसमें एम्पैथी में और सिंपैथी में क्या कुछ अंतर है, ताकि हमारे साथ सभी वॉलंटियर्स को भी थोड़ा और विस्तार से इसका पता लगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ इसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले हम किसी काउंसलिंग सेंटर में, क्योंकि मुझे भी मैं भी काउंसलिंग सेंटर में 1-2 घंटे का समय दे रहा हूँ, तो मैं उस काउंसलर पूरे कंट्री के लिए बना हुआ है, तो मैं भी उसमें बैठा हुआ था। तो हमारे पास एक कॉल आया, मैंने उसको रिसीव किया, मैंने उसको उठाया, तो उन्होंने बताया कि जी मैं अंजलि बोल रही हूँ, मैं अंजलि बोल रही हूँ सर,
और मुझे आपके इस के नंबर मिले कहीं से। तो सर क्या हुआ कि मुझे पता लगा कि हमारे जो परिवार की जो रिपोर्ट्स गई थी, वो सैंपल लिया था, तो उनकी रिपोर्ट्स आई है। तो सर रिपोर्ट्स में क्या है कि मेरे दोनों बच्चियां, उनके दो बेटियां थी, एक 8 साल की थी और एक 5 साल की थी। बोल रही जी मेरी दोनों बेटी जो छोटी बेटी, दोनों बेटी इनको कोविड हो गया है, पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आई है, और मेरे हस्बैंड भी पॉजिटिव हो गए हैं। अब मेरी अकेले की, हमारा छोटा ही परिवार है, और मैं ठीक हूँ, मुझे मेरी जो रिपोर्ट है वो ठीक है। अब मैं तो सर ऐसी स्थिति में क्या करें? मैं बहुत घबरा गई हूँ सर। अब दोनों बच्चियों को उनकी सेवा करना, मेरे पति की सेवा करना, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मुझे अपने आप को इससे बचाना भी है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है सर, तो प्लीज मुझे कुछ गाइड करें। डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में भी आम आदमी वो डर जाता है, नो डाउट, उसमें बिल्कुल भय क्रिएट हो जाता है। तो हमने मैडम से बातचीत किया, तो हमने यही बताया कि मैडम जी आपको देखिए आजकल कोविड का दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको इसमें इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सावधानी जरूर है, क्योंकि सेफ्टी सेव्स, हमें सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन इतना घबराना भी नहीं है, क्योंकि आपको आपकी बातचीत से आप तो पढ़े लिखे समझदार भी लग रहे हैं, मैच्योर भी लग रहे हैं। तो आपको प्रयास ये करना है, यदि आपके जो परिवार के जो ये आपके जो फैमिली मेंबर हैं, यदि ये हॉस्पिटल में आइसोलेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं इतनी। और फिर उन्होंने बताया कि नहीं जी वो घर पे ही आइसोलेट किया गया है, बेड्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो रहे हैं आजकल। तो मैं चलो कोई बात नहीं, घर पे भी हैं, तो घर पे आप उनसे आप कभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं करने देना है कि आप उनसे दूर हो गए हो। मतलब दिल से, भावना से उनके नजदीक रहना है, फिजिकली आपको टच नहीं करना उनको, और उनके मन में अछूत की भावना नहीं लाना है कि उनको कोविड होगा तो अछूत हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि उनमें आत्मविश्वास लेकर के आना है, बच्चों में भी और आपके पति में भी, उनको आप मोर सपोर्ट देना है, लेकिन अपनी सेफ्टी भी आपको जरूर रखना है, और सावधानियां भी आपको जरूर रखनी है। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने या हॉस्पिटल ने आपको जो उनको जो दवाई वगैरह दी है, वो उसी प्रकार से आपको केयर करना है, और उनसे बातचीत करते रहना है। उनको ऐसा नहीं कि उनको अलग रूम में बंद कर दिया और आप अलग रूम में जाकर के मोबाइल के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लग गए, ऐसा नहीं करना है। अभी आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों बच्चियों के साथ, उनके पापा के साथ लगातार बात करना है, और उनको समय समय पर खाने वगैरह के लिए पर्याप्त देना है, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया। दूसरी बात, यदि फिर भी कोई आवश्यकता है आपको, तो ऐसा नहीं समझना है कि मैं अकेली हूँ, कहाँ बाजार में जाऊंगी, नहीं, आपको बाहर जाना है। बल्कि हमने उनको नंबर्स प्रोवाइड किया कि ये जो एनजीओ जो भोजन आपके घर पहुंचा देगा, ये डॉक्टर्स की टीम है जो रात दिन काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा ये सभी लोग किसी एनजीओ के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से हैं। तो जब मैडम को बातचीत किया हमने 10-15 मिनट, तो उनको बड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस है, बोलो सर मैं तो एकदम से घबरा गई थी, लेकिन आपने जो बताया डेफिनेटली हम इस तरह से करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो टीम्स जो बनाई जा रही है अक्रॉस द कंट्री, मैडम तानिया गुप्ता जी जानती है, क्योंकि शायद मैडम तो एफडीपी प्रोग्राम में मैंने मैडम को देखा था, भले ही हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो मैडम को मैंने प्रोग्राम में देखा था। तो यू विल बी सरप्राइज कि पूरे मैडम इस चीज को जानती हैं कि अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ये सब कार्य हो रहा है। जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के जो वॉलंटियर्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सभी जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट के, जो स्टेट के जो मुख्य सचिव, उनको ये लेटर सर्कुलेट किया गया है कि आपके स्टेट में जो एनएसएस है, एनसीसी है, उनको एज ए वॉलंटियर साइको सोशल काउंसलिंग में या आप उनको किसी हेल्प में उनकी टीम्स बना करके राष्ट्र की आप मदद करवाइए। तो वो सब हो रहा है। तो हम जो आज जो बातचीत कर रहे हैं, वो हमें इस विषय में नहीं जाना है कि ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया, नहीं, हमें इस विषय में नहीं जाना है। हमें मुख्य रूप से यही बात करनी है कि हम कैसे अधिक से अधिक हेल्प कर सकते हैं, हम किस तरह से वॉलंटियर्स बन करके समाज की, परिवार की, संस्था की, अपने साथियों की मदद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए हम डॉक्टर्स तो नहीं है इसमें, मैं इस चीज को आप जानते हैं, हम डॉक्टर्स नहीं है। वो ठीक है, कुछ लोगों के नाम के आगे डॉक्टर्स लगा हुआ है, तो वो तो पीएचडी किए हुए डॉक्टर्स हैं, तो हम सब डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम एक अच्छे सपोर्ट करने वाले बन सकते हैं। किसी के
मैंने बताया कि हम जो प्यार के 2 शब्द बोलेंगे कोविड पेशेंट को, उसके परिवार को, तो उनमें आत्मविश्वास आएगा, उनमें मनोबल आएगा, और उनका ये एक तरह से जो उनका साइको सोशल काउंसलिंग होगा, उनमें एक मजबूती आएगा। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि गुरुग्राम में डाइट है आपके यहाँ, नदी के आपके यहाँ, तो जब हम SCRT हरियाणा से वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैडम ने इस चीज को शेयर किया था कि उन्होंने अपनी मदर को बहुत अच्छा इलाज करवाया, उनको वो घर पर भी ले आए कोविड ठीक होने के बाद, लेकिन फिर भी वो पास जब वो बच नहीं पाई। तो मैडम से हमारी जब चर्चा, उन्होंने बताया, बोलो जी सबसे मोटी हमारी कमी क्या रही कि हमने उनके मनोबल नहीं दिया, वो मन से हार गई थी, क्योंकि थोड़ा एज भी उनकी मान लीजिए 60-65 साल बता रहे थे वो, लेकिन वो बोलो मन से हार गई थी। हमने लास्ट में निष्कर्ष एक निकाला कि वो मन से पराजित हो गई थी। तो हमें प्रयास करना है कि अपने लेवल पे, अपने चाहे कोई परिवार के हो, चाहे अपने अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे किसी संस्था के माध्यम से हो, किसी भी तरह से, हमें लोगों को मन की ताकत वाली दवाई देना है कि उनमें आत्मविश्वास जगे, उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो हिम्मत रखे। कई लोग क्या मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कई बार इस चीज को महसूस किया गया है कि बहुत से लोग जो मन से हार जाते हैं वो हार जाते हैं। तो प्लीज हमें मन से जरूर जीतना है। ये इन चीजों को हमें जरूर प्रयास करना है। अब मैं आपसे एक दो जो केस स्टडी उनके बारे में बातचीत करूंगा, क्योंकि आप सभी भी हमारे बीच में काफी विद्वान हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले तुम थोड़ी सी चर्चा सिंपैथी और इम्पैथी पे करें। तो मैं चाहूंगा कि आपके बिहाफ पे कोई इसमें कोई साथी अपना इनपुट दे, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर मुझे तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि थोड़ा ये वर्कशॉप है तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप में से जितने भी विद्वान साथी, जैसे डॉक्टर बबीता भारद्वाज जी मुझे दिखाई दे रही है, सरिता मैडम जी मुझे दिखाई दे रही हैं, कविता मैडम जी, डॉक्टर सलोनी गोयल जी, तो आप सभी विद्वान मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज यदि आप में से कोई थोड़ा सिंपैथी और इम्पैथी के बारे में बताए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका कुछ ऐड होने के बाद आई विल बी कंटिन्यू। प्लीज थोड़ा सिंपैथी और इम्पैथी के बारे में यदि कोई चर्चा करे तो अच्छा लगेगा। ये सिंपैथी और इम्पैथी क्या है? सर may I? यस मैम, यस मैम। सर सिंपैथी इज द फीलिंग कि हमको, हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो हमको एक मतलब हमको दया वाला भाव आता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बस बातों तक रख देते हैं। इवन दिस मीटिंग, दिस कॉन्फ्रेंसेस वी कंडक्ट, यहाँ तक कि अगर बात रहेगी कि हमको करना चाहिए, होनी चाहिए ऐसा, तो मैं सर वो काम नहीं देता। बट एम्पैथी में हमको खुद लगता है कि वो चीज जो वो आदमी के साथ हो रहा है, उस इंसान के साथ जो हो रहा है, वो अगर हमारे साथ भी होता तो हमको जो फीलिंग आती है उस हिसाब से अगर हम सोचने लगेंगे तो वो एम्पैथी हो जाती है। किसी और के दर्द को हम खुद का दर्द मानकर अगर चलते हैं, उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं, तो वो एम्पैथी होती है। बट सिंपैथी बस बातों तक रह जाती है कभी कभी। तो ये बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है। ना बिल्कुल बिल्कुल, मैडम ने जो कहा दैट इज वेरी नाइस। बिल्कुल आपने इस विषय को बहुत अच्छे से बताया है। देखिए प्लीज अपनी बात रखना Any of the चाहिए। student teacher would like to share something? Yes, ma'am. Any volunteer? Yes, Anita, please. Ma'am, actually, I want to share my experience toward this COVID-19. Last year, at November, I also got positive. Like I faced that situation, and on that time, the only thing which with जिस चीज ने मतलब लाइक मुझे उस चीज से रिकवर होने में हेल्प किया है, that is only the motivation. Like the family and other friends who had motivated me on that period of time. So that was really specific कि अगर तुम कोविड पॉजिटिव पाए जाते हो तो पीपल यूज टू से कि आप लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है और आपने मास्क नहीं पहना, दैट इज व्हाई you have got positive in that case. So ma'am, on that time, the only thing which I appreciate is that if there is a motivation, or we can say support by family, support by friends, and support by all other members who are close to you. So on that, अगर वो चीज होती है तो वो रिकवर होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हम लोग का. So that is what I want to say, ma'am. Very right, Anita. Thank you, beta. Anyone else?
Yes, Ajit. Ma'am, while talking to helping someone, yeah, I know as Jyoti ma'am suggested that physical distancing is a barrier, but technology and communications is that tool which can help a lot. And while helping someone, it's never required to address their weakness. We need to appreciate their positive intent as well as give them the positive regard. So if they just get motivated, and as we also know that human have that ability to change their lines in hand, we can say destiny. So it's human effort which change the globe. So similarly, he can stand in a very difficult situation, and we have just done it from millions of Maya million year ago from till now. So this is a part of our survival instinct needed to be tested. So there is nothing we can not cross along with all other health, ma'am. So counseling is just a way we helping to each another. Sometimes it could be from our friends, families, some kinds from some professionals. So it doesn't need that I am too worried that I am getting COVID positive. It's just a simple illness which need to be addressed as a illness. And as we know that it could be cured from some certain level, and many of us have developed such immunities that can end it very simultaneously. So it's not the first step about this, that we motivate people, make them aware, and just communicate as simple as we are living at previous life, but maintaining that social distance to just not get ill from received or transmit that virus. So that's it, ma'am. इसमें दो बात मुख्य है, सिर्फ दो बात, हमें ज्यादा उसमें नहीं करना। एक तो क्या है कि हम उनको इमोशनल मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, एक बात। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जितना हम मदद कर सकते हैं वो मदद करें। नंबर एक, हम उसको जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर सके, एक बात। मतलब और दूसरा, उनको मानसिक रूप से मन से आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल बेस पे उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये दो बड़ी चीजें हैं इस सभी में। बाकी जो अन्य तरह की स्पोर्ट्स है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हम उनसे जरूर शेयर करते हैं। तो यही है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो मेडिकल की फैसिलिटीज की बात हो, चाहे वो फिजिकल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार के साधन की बात हो, और प्लस पे मानसिक रूप से वैचारिक रूप से उनको सुदृढ़ करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि बहुत से लोगों के जब इंटरव्यूज वगैरह हम देख रहे हैं, तो वो इस तरह की बात कहते हैं कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग जिनके पास कोई एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में कहा था कि ईच वन रीच वन, ये एक सबसे बड़ा मंत्र है इस चीज से लड़ने के लिए, कि हम में से जो भी व्यक्ति कहीं पर भी है, कैसी पोजीशन पे है, वो कोई ना कोई मदद तो कर ही सकता है। तो हमें प्रयास ये करना है कि हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स के रूप में जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में यही रखना है, यही होना है कि हम में से प्रत्येक कम से कम एक आदमी तक तो जरूर पहुंचे, उसमें पॉजिटिविटी लेकर के आए, उसमें उसके मनोबल को बढ़ाए, और उसको किसी प्रकार की फैसिलिटीज की आवश्यकता है, किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, किसी प्रकार के स्पिरिचुअली या मेंटली सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हम वो प्रोवाइड करें, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैडम ने इंडिकेट किया कि बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में, कुछ लोग ऐसी सिचुएशन का बेनिफिट उठाते हैं, हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ, अभी सरकार ने भी इस पे काफी ध्यान दिया है, बहुत से संस्थाओं ने बड़ा ध्यान दिया है, और इस पे काफी व्हाट्सएप पे भी, मीडिया में भी कई तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। तो हमें बड़ा पॉजिटिव रह करके और बहुत अच्छे तरीके से जो भी लोग हमारी नज़र में जो नीडी है,
जिसको इस तरह की मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता है, फिजिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, या कोई और प्रकार की फैसिलिटीज की आवश्यकता है, तो हम वो प्रोवाइड करें। अगर यदि हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हम उससे शेयर करें ताकि वो ले सके। प्लस में जो जिन संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, तो वो संस्थाएं भी कई बार इस तरह की इंफॉर्मेशन हमसे लेती हैं। हम उन संस्थाओं को भी ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन दे जिनको ऐसी सिचुएशन में उनकी आवश्यकता है, ताकि यदि वो उधर से एक्सेस नहीं कर सके तो संस्थाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जितने जो एनजीओ है, जो डिफरेंट टाइप की जो एजेंसी जो काम कर रही है, वो उनसे एक्सेस कर सके। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। थैंक यू मैडम, सो नाइस। और कोई साथी प्लीज अपनी बात कहे। उसके बाद क्योंकि समय अभी थोड़ा कम बचा है, 11:09 हो गए, फिर मैं अभी उस विषय फिर, क्योंकि मैडम जी भी हमारे बीच में बोलेंगी, तो प्लीज कोई किसी के मन में कोई बात है जरूर शेयर करें प्लीज। Any of the student teacher? Anyone who would like to share something? Ritu, would you like to share something? Are you there in the meeting, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here. Yes. Good afternoon, principal ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, teachers. Ma'am, I want to just share that as I was also recently positive, and the very moment I got to know that yes, I am positive. So first of all, for a certain minute, for several minutes, it was like I completely went blank, like what to do now, how to do manage the things. And the very first thing which got strike into my mind is how to protect my mother and my sisters from this now, as I was not much worried about myself, because I know I will tackle with this thing, as it is we all are going through this thing. But the only problem was that to how to keep my mother and my sister safe. So I immediately got separated. I isolated myself, and the very moment I got call from my father when he got to know that I am positive, so the motivation, the confidence he showed in me, that I know you will be able to cope up with the thing, and there is no issue to there is no need to panic. And the wording he was using, he was like just कुछ नहीं होता बेटा, it will get all good, तुम बस अपने आप पे ध्यान रखना, अपने आप पे डाइट प्रॉपर लेना, दवाई प्रॉपर लेना, और उसके बाद में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो जो वो एक पहली चीज आई थी, उसने थोड़ा सा मुझे अपने आप को काम करने में हेल्प करी। Then slowly when my other friends, they got to know that I am positive, so the support they showed me on the calls only, regularly calling me and taking up my status, that how I am doing and all. So it was all good. Like I never felt, though I know that I am suffering from COVID, but it was all like the support which I got. जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, जो सिंपैथी होता है वो केवल बातचीत तक रह जाता है। उसके बाद जब जहां तक एम्पैथी की बात आती है, तो मैडम ने बहुत ठीक कहा, एम्पैथी में क्या टू पुट आवर लेग्स इन अदर शूज, कि दूसरे के दुख में दूसरे के दुख को अपना दुख महसूस करना, या तो दूसरा उसके स्थान पे अपने आप को महसूस करना। टू पुट आवर लेग्स इनटू देयर शूज, जो आदमी परेशान है, दुख है, और उसके शूज में एक तरह से अपने पैर डाल करके देखने का अर्थ है कि उसके दर्द को, अपना दर्द उसकी जगह पे अपने आप को रखना, दैट इज एम्पैथी। तो अभी क्या है कि जितने भी जो कोविड पेशेंट है, इनके फैमिली मेंबर्स है, तो उनसे सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनमें इस चीज को डालना उनके मन में कि हम वास्तव में उनकी मदद करने वाले हैं, वास्तव में हम उनकी समस्या को सुनने वाले हैं, और केवल सुनने नहीं बल्कि उस पर हम काम करने वाले हैं। तो उससे क्या होता है, अभी क्या हुआ, कोविड की वजह से बहुत से लोग तो इस चीज को छुपाने लग गए, क्योंकि लोग उससे दूरी बना लेते थे, तो इस तरह का भय क्रिएट हुआ। तो उसमें जो एम्पैथी थी वो काम नहीं हुई, सॉरी, उसमें जो सिंपैथी थी वो कामयाब नहीं हुई। इसलिए एम्पैथी पे ज्यादा फोकस किया गया कि जो भी कोविड पेशेंट है, फैमिली मेंबर्स है, यदि हम उनकी ठीक से साइको सोशल काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो ये बात हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हम पे विश्वास करें, हम उन पे विश्वास करें, हमारे दोनों में बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो,
तब हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर पाएंगे। हमारे प्रति वो पॉजिटिव हूँ, अब वो ठीक है कोविड पॉजिटिव तो हो गए, उसको तो हमें ठीक करना है, लेकिन वो हमारे प्रति, हमारी बातचीत के प्रति पॉजिटिव हूँ, ताकि हम उनको कोविड नेगेटिव में लेकर के आ सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो हमें इस चीज को जरूर देखना है कि सबसे पहले जो स्किल, जो एम्पैथी की जो हम बातचीत कर रहे हैं, एम्पैथी में यही है कि उन्हें ये विश्वास में लाना, उनको इतने विश्वास में लेकर के आना कि वो अपनी प्रत्येक बात, प्रत्येक जो दुख दर्द है, वो अपने मन की जो भावना है, जो अपने मन का जो भाव है, वो हमसे शेयर कर सके। फर्स्ट बात। सेकंड ये है कि उन्होंने जो कुछ कहा, हमारे अंदर भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ कहा हम उसको उसी संदर्भ में उसको समझ सकें, जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो उसी संदर्भ में करें, अदरवाइज कोई अन्य चीजें उसमें अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड वगैरह न करें। पैराफ्रेजिंग का अर्थ आप सभी जानते हैं कि ठीक स्तर पे लेकर के आने के लिए उसे उसी वे में यूज करना। और उसके बाद जैसे एक्यूरेट एम्पैथी की बात करते हैं, तो एक्यूरेट एम्पैथी आप सभी जानते हैं, एक्यूरेट का मतलब तो बिल्कुल ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है। तो वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं हम उसी संदर्भ में, उसी सेंस में उस चीज को पकड़ सकें, ये बात अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वास्तविक जो मीनिंग है, उसका जो वास्तविक भाव है, वो चीजें में करना। अब देखिए एक मैं आपको एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। हमारे पास एक कॉल आया, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो वास्तव में घटनाएं घटी हैं। उसमें क्या हुआ, एक लेडीज का कॉल आया, जो कि ये आपका जो फरीदाबाद साइड से था। तो मैडम ने बताया कि जी मैं रविता बोल रही हूँ, रविता। और वो बड़ी, उसकी आवाज में बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट था, बड़ी गले से भरी हुई आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे आपके नंबर कहीं से मिला कि आपकी संस्था भारत सरकार की तरफ से आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सर अभी मैं बहुत कष्ट में हूँ और मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि क्या है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था, वो नहीं बच पाए। अब मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, मुझे चारों तरफ अंधेरा और निराशा दिखाई दे रही है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ। दैट इज रियली में अगर इस तरह कॉल आता है तो बड़ा क्रिटिकल हम सब के लिए भी। अब हम एकदम से उसको क्या बोल सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, जिसको इतना निराश हो गई, जो जिसका घर एक तरह से इस कंडीशन में चला गया, बच्चे छोटे हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी समाप्त हो गई। तो रियली में, लेकिन जो लोग जो काउंसलर होते हैं उनको मैच्योरिटी के साथ बातचीत करना होता है, उनकी बातों में भावुक नहीं होना है, उनके विश्वास को जीतना है, उनकी बात को समझना है और उसको उस जो दुख जो गहराई से दुख उससे निकाल करके लाना है, वो तो सब में करना है। लेकिन कई बार हम सब के मुंह से आवाज नहीं निकलती, इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं हम भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन वहां देखता है कि हमारी जो मैच्योरिटी वो किस लेवल की है, हमारी परिपक्वता कुछ लेवल की है। तो इसीलिए ऐसी, इसको बोलते हैं एडवांस एम्पैथी क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े एडवांस एम्पैथी वाले होते हैं। अब उसमें आप क्या करोगे, देखिए ऐसी सिचुएशन में आप उसे कुछ बोल भी नहीं सकते एकदम से, तो इस तरह का बड़ा क्रिटिकल। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यही करना है कि मैडम जी बिल्कुल आपके साथ, अभी उनकी बात से बात हमें मिलाना है और उसे एडवाइज नहीं करना। एडवांस सिंपैथी में एडवाइज नहीं करते हैं कि आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बल्कि उसकी बात में बात मिलाना होता है। तो हमें यही कहना होता है उस समय कि मैडम जी वास्तव में बड़े दुख की बात है कि इस तरह की घटना हो गई, लेकिन फिर भी देखिए आपको बड़ा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बच्चे हैं आपके बहुत छोटे छोटे। यदि आप इस तरह की बात सोचोगे तो आपका तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा नहीं है, कोविड की धीरे धीरे बीमारी है, ये काफी ठीक होती आ रही है, इससे बहुत परिवारों का नुकसान हुआ है। हमें बड़ा खेद है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालना और माँ से बढ़िया अपने बच्चों के लिए कौन हो सकता है। तो प्लीज आप थोड़ा हिम्मत रखिए और अपने बच्चों और अपने परिवार को आपको संभालना है, क्योंकि यदि आप इस तरह की बातें करोगे तो बच्चों पे इससे बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा।
तो आपके साथ साथ बच्चों का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, इसके लिए हम आपकी जो आपको जो कि आपके पति की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो सरकार की तरफ से, जो समाज की तरफ से जो किसी प्रकार की जो हेल्प है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, मदद करेंगे। जैसे कि अभी सरकार ने घोषणा की आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो वो सब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी संस्था के किसी कर्मचारी अधिकारी को भेज देंगे, आपके हम नंबर आ गए हमारे पास, फिर भी आप एड्रेस भी लिखा दो। और 8% आपको इस स्थिति में कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो प्लीज आप वो कहो। हम जो आपके क्षेत्र में हमारे जो लोग हैं या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे हम बोलते हैं कि वो आपकी मदद के लिए आप तक पहुंचेंगे। तो हमें मतलब कि खैर मैं तो, मैडम जी हमारे सामने बैठी है तानिया गुप्ता, मैं तो इस लेवल का काउंसलर नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप तो मेरे से काफी अनुभव वाले और काफी एक्सपीरियंस वाले हैं, तो आप तो बहुत बेहतर तरीके से मेरे से भी बहुत बेहतर तरीके, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस मेरा तो नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल के रूप में जो क्वेश्चंस हमारे पास आए और हमने आपसे जो शेयर किया, आप तो इसको बहुत हाई लेवल पे कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल पे आप इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप तो एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पुपिल टीचर्स आप तैयार कर रहे हैं देश के लिए। और तो आप तो इसमें बहुत अच्छा, प्लस में जो बच्चे जो पुपिल टीचर्स आपके माध्यम से सीखेंगे और उनमें जो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, दैट विल बी वेरी ग्रेट। तो हमें इन चीजों को जरूर देखना और समझना है। अभी देखिए आप सभी साथी हैं, तो आप मैंने भी कोई अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहे तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी आज का जो हमारा विषय वो यही है कि इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट के माध्यम से हम आपस में सभी डिस्कस भी कर सकते हैं। और मुख्य बात यही है इसमें कि हमें जो 5 टीम बनानी है, और ये जो 5 टीम है ये केवल फॉर्मेलिटी वाली नहीं है, बल्कि हम सबको ऑपरेशनल वे से हमें काम करना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम राष्ट्र की बड़ी मदद कर सकते हैं, बड़ी हेल्प कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम मैंने बताया कि कोई हम साधन दे सके, बल्कि हम टेलीफोनिकली भी यदि किसी के मन में शक्ति डाल सकते हैं, मन में श्रद्धा विश्वास। हाँ, वेलकम सर। कोई आवाज आ रही थी, कुमारी रीना कुछ कहना चाह रही है। हाँ, बीच में किसी की आवाज आई थी। तो मेरा जो कहने का भाव था कि कोई जरूरी नहीं कि हम फिजिकली उनके पास पहुंच पाए, बल्कि हम टेलीफोनिकली भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई इस तरह का एक नंबर मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूशन के लेवल पे या अपनी टीम के लेवल पे हम अपने आसपास में लोगों को दे सकते हैं। उसको कह सकते हैं भाई कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, नकारात्मक विचार आए तो आप हमारी टीम नंबर 3 या टीम नंबर 5 है वो आप वो चीज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई अपनी बात को कुछ ऐड करना चाहे, अपनी बात कोई एग्जाम्पल देना चाहे, क्योंकि आपने भी बड़ी नजदीकता से बहुत से कोविड पेशेंट देखे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने आसपास में। तो डेफिनेट आपने भी इस चीज का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी जरूर किया होगा। तो आप में से भी यदि कोई साथी अपना एक्सपीरियंस या शेयर किए तो वो भी एक वर्कशॉप का इम्पोर्टेंट पार्ट है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो प्लीज आप में से कोई साथी अपना किसी प्रकार का जो कोई पुपिल टीचर्स है या कोई फैकल्टी मेंबर है तो वो शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। Yes, any of the student teacher would like to share anything? Please, you are most welcome. So Ritu, as you were just sharing, that the empathy is very, very important, and the support which you got through your friends, through your relatives, through your parents, throughout, although they were not present with you physically, they could not, but they were there with you emotionally. They were in touch with you through phone calls,
through video calls, so that you were always feeling that they are with you. So that is the thing sir is discussing with us, that we should remain in touch with the person who is suffering from COVID, so that they should not feel neglected and they should not feel that अभी तो ऐसे हो गया है तो अब हम सबसे अलग हो गए, अब हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, nobody wants us to be with them. That feeling should not come. Yes, ma'am. It should- Ma'am, it even should there, always- there is a kind of feeling also we get, like, what if other will get to know how will they, what if a neighbor will get to know how they will react, they will like, it's a kind of एक taboo जैसा हो जाता है कि उधर नहीं जाना है, उधर नहीं छूना है, they are like COVID cases in their house. So वो जो चीज होती है, they also are there, but when you see that other people are also there to support you, so it feels like let it be, the focus on the positive things only, how you can cope up with the things, and you just have to go with the flow, because as you know that time will pass on, this will not stay for all time. Exactly. And that is where the support of our relatives and friends and family members help us. Sir, over to you. यस मैम। तो जैसा कि यस मैम तो जैसा कि हम सब बातचीत कर रहे थे, तो इस बातचीत में यही है कि हमें सभी को ये प्रयास करना है कि हमें ये जो 5 टीम बना करके अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और जिस वॉलेंटियर्स की जिसमें रुचि है वो उसी में अपना कंट्रीब्यूशन करे, और ये इस समय एक राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा रहेगी, ये अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दूसरा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि अक्रॉस द कंट्री इस तरह की टीम्स बना करके राष्ट्र की सेवा कर रही है, और हमारे वॉलेंटरिज्म जो है, हमारा जो वॉलेंटियरशिप है वो यही है कि हम वक्त आने पर, समय आने पर राष्ट्र की, समाज की, इन सभी की हम मदद कर सके। इम्पोर्टेंट बात है। अभी लगभग 11:20 होने वाले हैं, लगभग 10 मिनट है, तो मैं चाहूँगा कि इस विषय में मुख्य रूप से 2 ही बात है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना है, जो भी, चाहे वो किसी फैसिलिटीज की, किसी भी हेल्थ से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, और यदि नहीं हम तो उसको कलेक्ट करें और प्रोवाइड करें, एक बात। दूसरा, जब जहाँ भी मौका मिले हमें एज ए काउंसलर अपना रोल निभाना है, और बड़े ही स्किल ऑफ एम्पैथी का यूज करते हुए सभी में मनोबल, आत्मविश्वास और उसके मन तक हमें जाना है, और उसके भावनाओं को, इसके विचारों को बड़ा ही पॉजिटिव में करना है। तो मैं समझता हूँ अभी मेरी तरफ से यही था। ओवर टू मैडम प्रतिभा जी, क्योंकि अभी मैडम प्रिंसिपल भी बातचीत करेंगे। तो थैंक यू मैम, सो नाइस, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for guiding our student teachers on psychosocial counseling skills and COVID helper skills. आई एम श्योर सर, आपने जो भी डिफरेंट स्किल्स की जानकारी दी है, हमारे को, बच्चों को हमारे बहुत सारी टीम्स के बारे में बताया, 5 टीम्स के बारे में जानकारी दी, तो मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स और हमारे सारे ही स्टूडेंट टीचर्स ऐसे क्रिटिकल पीरियड में इन टीम्स के थ्रू और अलग अलग तरीकों से भी समाज को अपना योगदान देंगे, एंड दे ऑल विल ट्राई टू फुलफिल द मोटो एज यू सेड, ईच वन रीच वन। अगर हम में से कोई भी किसी के साथ भी जुड़ पाया और उसके लिए कुछ कर पाया, तो हम अपने आप को ऑब्लाइज समझेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर तान्या गुप्ता मैम, टू प्रपोज अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स टू द एस्टीम्ड रिसोर्स पर्सन। ओवर टू यू मैम। मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डॉक्टर शत्रुघ्न भारद्वाज सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद सर कि आपने आज आप दूसरी बार हमारे संस्थान के साथ जुड़े हैं। और सर, सबसे पहले बहुत मतलब आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी रूरल काउंसिल फॉर एजुकेशन, एंड हम जो ये नई तालीम वेंटल सेल से भी जुड़े हुए हैं सर, वोकेशनल एजुकेशन एंड नई तालीम, और साथ ही साथ स्वच्छता के माध्यम से भी हम जुड़े हैं। सबसे पहले सर, आपका और पूरे संस्थान का जो योगदान है इस समय, वो बहुत ही सराहनीय है सर।
बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए कि आप हमसे जुड़े। और आशा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज सर के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भी, चाहे वो हमारे बच्चे हैं या हमारी फैकल्टीज़ हैं, अपनी स्ट्रगल्स को, अपने चैलेंजिंग टाइम्स को यहाँ पर शेयर किया है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास रहा एनएसएस सेल का कि आप एक ही मंच पे बहुत तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी शेयरिंग का आपने एक प्लेटफॉर्म अरेंज किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एनएसएस सेल ऑल्सो। जैसे सर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जुड़े रहे। 5 दिन का एक जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम महात्मा गांधी सेंटर फॉर रूरल एजुकेशन ने किया, और उसमें कैसे 9 से 5 बजे तक एक बहुत ही मतलब एक रिगरस वर्कशॉप के रूप में हमने वो टास्क किया। कभी कभी तो वो वर्कशॉप्स करते हुए और उसमें जो हेल्पर स्किल्स हमने डेवलप करी वो बहुत टायरसम भी होती थी, बट शायद यही तरीका है कि अपने अंदर हम हेल्पर स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। बहुत सरल होता है लोगों को एडवाइस करना कि आप दवाई खा लो समय पे, आप ठीक हो जाओगे, बट जिसके साथ वो सिचुएशन, जो उस सिचुएशन से कोई गुजर रहा होता है, तो उसको और उसके परिवार को ही पता होता है कि वो सिचुएशन कैसी होती है। पर जैसे कि आपका वर्कशॉप का आज थीम है और जो ये प्रयास हो रहा है कि देश के अंदर देखिए एक जनता जो होती है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक बहुत ही अहम रोल है, और क्योंकि हमारी एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, तो हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी सरकार के साथ भागीदार बने हर तरह के उत्तरदायित्व में। बड़ा आसान होता है सरकार को रिडिक्यूल करना, बोलना कि सरकार कुछ नहीं करती, लीडरशिप पुअर है और कुछ नहीं हो रहा। हम सबको पता है रियलिटी क्या है। वैक्सीनेशंस की कमी है, दवाइयों की कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, मेडिकल फील्ड में इतना एलोकेशन नहीं हो रहा है, ये सब फैक्ट्स हैं। और भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तरह के फैक्ट्स हैं, बट इन फैक्ट्स को दोहराना, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, अननेसेसरीली नेगेटिव न्यूज को देखना, और जो इस दौर से जा रहा है उसको एक, जैसे आपने बहुत ही एक अच्छी बात आज इस वर्कशॉप के थ्रू बताई कि सिंपैथी करना सल्यूशन नहीं है। बड़ा बुरा हो गया तुम्हारे साथ, या ये भी कह देना कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, तो ये थोड़ा सा मुझे लगेगा एक नाइंसाफी रहेगी उन परिवारों के साथ जिनके साथ ये कष्ट का दौर है। और साथ ही साथ सर मैंने ये सवाल एक उस एफडीपी में भी जो हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में काउंसलर जो जुड़ी थी, उनसे उस समय मैंने भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग करी थी। तो मैंने ये बोला था कि मैम देखिए, जो कोविड की वजह से आइसोलेटेड घर में है, और या आप कह लें उनका परिवार क्वारंटीन के अंदर है, या पूरा परिवार हो जाता है कोविड से मतलब इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो फिर भी मुझे लगता है कुछ हद तक मैं इसको मतलब पेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। थोड़ा सा आसान फिर भी होता है कि इर्द गिर्द व्यक्ति आपके सामने हो। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्पिंग स्किल्स वहां भी एक्सटेंड करने की जरूरत है जहां पर लोग आईसीयू वार्ड्स में हैं, जहां उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो वहां भी एनएसएस सेल लीड्स लेके परिवारों से जुड़ के हेल्पर सपोर्ट्स दे सकता है। तो सर मुझे लगता है एक ये है प्रयास एनएसएस सेल एआई का हमेशा सही रहा है। आगे भी आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जुड़े रहेंगे। हर तरह के जो भी नेशनल लेवल पे आप जो भी मूवमेंट्स करना चाहते हैं, हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ, क्योंकि हमारे बच्चे सारे ही आर्मी वार्ड्स हैं और ये पूरे ही पैन इंडिया में बच्चे हैं, तो अपने आसपास जहाँ भी जिस भी तरह की हेल्पर सपोर्ट अपनी परिवार, अपनी सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ग्रुप्स फॉर्म करी जाएं, तो आज इस मंच से मैं आपको एक आश्वासन देना चाहूँगी और मिनिस्ट्री को भी ये कहना चाहूँगी कि इस ऑब्जेक्टिव
इस ऑब्जेक्टिव के साथ आज ही हमने वर्कशॉप कराई है कि AI में कोविड टास्क फोर्स क्रिएट हो। तो आई विल रिक्वेस्ट द NSS सेल टू क्रिएट अ कोविड टास्क फोर्स, जिसके अंदर आप ये छोटे छोटे प्रयास, लीड्स देना, वैलिड लीड्स देना, या एक ऐसी कम्युनिटी को फॉर्म करना जो आपके NSS वॉलंटियर्स हैं उनके साथ जो कोविड इन्फेक्टेड है, अगर आप दिन में 10 मिनट भी एक व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं तो वो बहुत ही प्रशंसनीय होगी। बच्चे छोटे हैं सर, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं, बट हाँ जैसे आपने कहा टीचर्स इन द मेकिंग है, प्रोफेशनली ट्रेंड काउंसलर्स नहीं है या सोशल वर्कर्स की तरह नहीं है जिनके पास MSW की क्वालिफिकेशन है, पर फिर भी हर व्यक्ति जो है सर अपना योगदान एक एम्पैथेटिक रूप में दे सकता है। और जैसे एम्पैथी सर आपने समझाई कि दूसरे के दर्द को महसूस करना, बट मैं यहाँ जरूर ये जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप जैसे डॉक्टर होते हैं, यदि वो अपने ही लोगों का दर्द महसूस करने लग गए तो वो इलाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अहम काउंसलर या हेल्पर स्किल है कि दूसरे को सुनना और फिर उसको उसी की कंडीशन से बाहर निकालने में उसको मदद करना। उसे ना कोई एडवाइस देना, ना उसको कोई मतलब सिंपैथी देना, जैसे अभी हमने कहा कि सिंपैथी वर्क नहीं करती ऐसी सिचुएशन में, उसको एम्पावर करना कि वो अपनी रूटीन लाइफ में कैसे वापस आए, और एक नेगेटिव इमोशन जो क्रिएट होता है कोविड होने से उसको एक पॉजिटिव तरह से कैसे चैनलाइज करना, और इस सिचुएशन में कोपिंग स्किल्स सिखाना बहुत बहुत अहम है मेरे अनुसार सर। और कोविड के दौरान आपको पूर्ण रूप से NSS AI के द्वारा एक कोविड टास्क फोर्स के रूप में सपोर्ट मिलेगा सर। जहां भी मिनिस्ट्री चाहेगी कि हम जुड़ें, हम सभी टीचर्स, हमारे सभी छात्र जो हैं और उनके भी जो आगे फ्रेंड्स हैं या परिवार हैं, कि ये चेन बनी रहनी चाहिए। हम जुड़े रहेंगे सर आपके साथ, और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये वर्कशॉप कंडक्ट करी। और ऐसे ही हम कभी और अपने बच्चों में पेरेंट्स उनके आसपास ट्रेन करेंगे। ये आज हमारा एक कमिटमेंट आज आपको यहाँ से कोविड टास्क फोर्स बनाने का ही नहीं है, बट यहाँ से हमारे बच्चे भी अब लीड लेंगे कि ये एम्पैथी की स्किल्स जो हैं अपने 10 या 15 लोगों को बीच में इसका एक इम्पैक्टफुल वर्कशॉप फर्दर क्रिएट करें बच्चे। और ये गाइडलाइंस बच्चों से आप को मैं बताना चाहूँगी, ये ऑलरेडी शेयर्ड हैं ICMR की गाइडलाइंस, तो इसको हम यूज़ करते हुए, और यदि मिनिस्ट्री कहीं भी जाएगी, क्योंकि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो टीचर्स इन द मेकिंग हैं, जहाँ भी आप चाहेंगे, जिस रूप से आप चाहेंगे कि योगदान मिले, AI यहाँ पर हमेशा आपके साथ जुड़ा है। जय हिंद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम जी। जैसा कि मैडम जी जो बातचीत कर रहे थे, डेफिनेटली जैसे कि आपका तो वैसे आर्मी इंस्टीट्यूट है, आर्मी का एक मिशन होता है। आर्मी कभी अभियान नहीं करती, आर्मी हमेशा मिशन करती है, और मिशन का मीनिंग यही होता है कि मिशन का मतलब वो कार्य होगा, उसमें कभी भी अधूरापन नहीं होता है। तो इट्स वेरी ग्रेट कि आप तो बड़े पहले से ही बड़े पॉजिटिव हैं, और आपका इस तरह के प्रोग्राम आपने आगे आकर के ये प्रोग्राम किया है। मुझे पता है कि आपने आगे आकर के प्रोग्राम किया है, तो ये अपने आप में आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट है। यही तो एजुकेशनल लीडरशिप होती है कि सही मायने में लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो इनिशिएटिव ले, नए नए काम जो करे, और डेडिकेशन कमिटमेंट से अपनी सभी फैकल्टी को टीम के रूप में लीड करे। तो आई आल्सो कॉन्ग्रेचुलेट मैडम यू, आप हमेशा पहले भी जैसे आपसे पहले भी हमारा संपर्क रहा है, तो आप बहुत अच्छे ऐसे सभी को लीड करते हैं। और देखिए आप में कितनी जिज्ञासा है कि आपने उस FDP में 5 दिन लगातार, आपने खुद ने बताया कि वास्तव में वो बहुत अच्छी FDP रही है और उसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स रही है, तो आप लगातार 5 दिन उसमें जुड़े। तो ये सब आज जो हमने बातचीत की, ये उसी का एक तरह से रिफ्लेक्शन था।
तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब आपको उस प्रोग्राम में देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और ये अब दिल्ली में जो हमने इस कोविड का जो पहला जो प्रोग्राम है, यद्यपि हमने आपकी जितनी भी डाइट्स है उन डाइट्स में प्रोग्राम किए हैं लास्ट मंथ, लेकिन उसमें एक्चुअली जब चेयरमैन साहब का ये आदेश नहीं था कि कोविड पे बात करना है, तो उसमें वो स्वच्छता एक्शन प्लान पे हमने बातचीत की। लेकिन अभी वहां सब आपकी इंस्टीट्यूट से दिल्ली में शुरुआत हुई है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो ये मैंने कई बार देखा, पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया तो आपसे शुरुआत होता है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं। तो मैं भी आपसे बड़ा प्रभावित हूँ। थैंक यू मैडम जी वंस अगेन। और आपने जो कहा कि आपने बिल्कुल अपनी संस्था के माध्यम से इस तरह की टीम बना रहे हैं जल्दी, तो इट्स वेरी ग्रेट। ये राष्ट्र के लिए, संस्था के लिए, सभी पॉपुलर टीचर्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहेगा और एक बहुत अच्छा कार्य रहेगा। हम मानव है, मानवता की सेवा करें। हर सच्चा मानव धरती पे मनुष्य नहीं अवतार है, मानवता की सेवा करता वो सच्चा इंसान है। हर सच्चा इंसान धरती पे भगवान का रूप होता है, क्योंकि टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द ह्यूमन बीइंग is a service of the God. Thank you all of you. Thank you madam, so nice. Thank you so much sir. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। एनएसएस सेल की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ मैम, जैसे कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि एआई एनएसएस सेल अभी के टास्क फोर्स डेवलप करेगा, एंड सर हम आपको इसकी समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। एंड जो भी आपने फॉर्म्स मेरे साथ शेयर किए थे, गूगल लिंक्स, वो सभी मैंने बच्चों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो इन द मीन टाइम दे विल फिल दोज फॉर्म्स एंड आई विल शेयर दैट विद यू सर। And now I would like to convey my sincere thanks to our principal ma'am, Dr. Tanya Gupta, for giving us an opportunity to organize this workshop. And I would also like to convey my thanks to all my respected dear faculty members for joining this session. Before I conclude, with deep reverence and love, I extend my heartiest thanks to all the student teachers who participated wholeheartedly in this workshop. Without their zeal and active participation, this workshop would not have been possible. And my special thanks to Mr. Shubham and Ms. Ritu, NSS Volunteer Batch 2022, for providing the technical support for the event. Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. The mission of India has been to guide humanity. With this, I humbly request all of you to please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you so much once again, everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Jai Hind, Jai Bharat.